Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve, my dear educators. As I've been sharing with you a number of strategies so that you can bring that engagement, excitement, enrichment in your classes. I have already shared with you chapter 1 for teaching 6 to 8 standard science, like how you can make your science lessons interesting, how you can engage your students in such interesting activities where you can foster their critical thinking, collaboration, creativity, all the 21st century skills. So, my dear educators, today let's talk about chapter number 2, that is sources of food. So, here you go, my dear educators. Sources of food, when we are talking about here, you see what all sort of activities we can conduct. Let's talk about that. So, as it is written here, from farm to the table, the journey of food, embrace sustainable and delicious sources of nourishment. जब सोर्सेज ऑफ फूड की बात हो रही है, फूड कहाँ से आ रहा है? ऑब्वियसली फार्म से आ रहा है। फार्म से आकर टेबल पर कैसे पहुंचता है, स्टोर्स की शेल्फ्स पर कैसे सजा हुआ होता है, हम जाकर वहां पर जब शॉपिंग करते हैं वहां से उठाकर अपनी बास्केट भर लेते हैं, राइट? तो वो ट्रॉली में लेकर चलते हैं, तो कहाँ पर कहीं माइंड में बच्चों के ये भी तो आए, शॉपिंग करने जा रहे हो, सोचो कि ये पर्टिकुलर जो बॉटल है जैम की, ये पर्टिकुलर जो फूड आइटम है, सॉसेस देख रहे हैं, गार्लिक का जिंजर पेस्ट देख रहे हैं, जो भी आप खाने अलग अलग आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं चीजें, वो देख रहे हैं, वो बन के कैसे आती हैं, ठीक है, कहाँ से आई, कैसे हुआ, लेट्स थिंक अबाउट इट. So farm to table, that journey can be planned, right? Farm to the store shelves, जो भी आप इसको नाम देना चाहें. So that wonderful activity can be conducted in the classes. You can discuss with your students. A journey of food from its source to our plates is an important and complex one. By choosing sustainable and locally sourced foods, we can support our local communities and reduce our environmental impact. From fresh produce grown in community gardens to humanly raised livestock, and there are many delicious things also. So, my dear educators, बच्चों को हम ये सिखाएं कि जो खाना हमारी प्लेट में आकर सजा हुआ आता है, उसके पीछे कैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व होती हैं, कैसे फार्मर्स की मेहनत होती है, कैसे वो चेक होता है, स्टोर होता है, पहुंचता है, क्लीन होता है, मतलब वो सारे जो स्टेप्स हैं उसकी हम बात करें. लेट देम थिंक अबाउट इट. और यहाँ पर एक और बात हो रही है, बी लोकल, लाइक वोकल फॉर लोकल. लोकली जो ग्रोन चीजें हैं हम उनको खरीदेंगे, तो हम जो है वो जो हमारा मेक इन इंडिया का सपना है उसको और साकार करने में हेल्प करेंगे. बाहर से जब चीजें आती हैं स्टोर हुई होती, प्रिजर्व करने के बाद में उनका जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है उसकी वो कितनी रह जाती है, जो फ्रेश आइटम है उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या होती है, उसका इफेक्ट बॉडी पर क्या होता है, वो इस तरीके की बातों को जब आप डिस्कस करेंगे, सर्टनली योर चिल्ड्रन दे विल कम अप विद देयर डिफरेंट आइडियाज कि यस किस तरीके से हम, कौन सा फूड हमें खाना चाहिए, कौन सा फूड हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है. सो डिलीशियस एंड एथिकल सोर्सेज ऑफ नरिशमेंट अवेलेबल टू अस. लेट्स सेलिब्रेट एंड एम्ब्रेस these sources of food by being vocal for local and make informed choices about what we eat. By doing so, we can support a healthier and more sustainable food system for ourselves and for the future generations. Certainly, we can when we'll become vocal for local, when we'll have healthy choices, when we have our healthy platter, when we have our rainbow platter full of various vegetables, fruits, salads, right? So this is how many different cereals. हम बात कर रहे हैं millets की, so let's include millets also in our food, right? The whole year we will be celebrating as International Year of Millets, right? So, my dear educators, food की बात हो रही है तो don't miss this opportunity to talk about millets. Virtual farm tour can be organized. अगर आपका स्कूल कहीं खेतों खलियानों के आसपास है, उनको लेके जाइए. नहीं पॉसिबल है, सिटी के मिड में है, कभी बाहर ले जाना चाहिए वैसे तो, चलिए नहीं पॉसिबल, अगर फिर भी 1% कुछ ऐसा है तो go ahead with a virtual farm tour also, where students will be able to get to know about the different farms, the foods, how they are being produced, and after the tour, have them discuss the different sources of the food they saw, right? So maybe in-person visit can be planned if feasible. I have already mentioned the same. So my dear educators, चलो ये तो होगी एक एक्टिविटी, प्लान कर सकते हैं, वर्चुअली भी कर सकते हैं, इन पर्सन भी कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं. और जब भी आप फील्ड ट्रिप्स प्लान करते हो, मेक श्योर आप बच्चों को रिफ्लेक्शन शीट जरूर दीजिए बिफोर
द विजिट एंड आफ्टर द विजिट, दैट इज मैंडेटरी, अदरवाइज लर्निंग का पर्पस जो है वो सिर्फ एक आउटिंग घूमने तक ही रह जाएगा. नेक्स्ट इज फार्मर्स मार्केट स्कैवेंजर हंट. Take your students to the local farmers market, give them scavenger hunt, list of the different types of food कि आप ये hunt करिए, आपको कितने यहाँ पर मिलते हैं, दिखाई देते हैं कि नहीं देते हैं. तो भी यहाँ पर बात तो लोकल और ग्लोबल की भी हो जाएगी, कितने लोकली ग्रोन हैं, कितने हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, कितना न्यूट्रिएंट वैल्यू है, कैसे फार्मर्स उनको प्रोड्यूस करके सेल करते हैं, क्या है. तो आप उनको उस लोकल मार्केट में, वेजिटेबल ग्रोसरी मार्केट में लेके जा सकते हैं. यू कैन प्लान इट. रेसिपी क्रिएशन कर सकते हैं. चैलेंज योर स्टूडेंट्स टू क्रिएट रेसिपीज यूजिंग स्पेसिफिक ingredients or the food source such as apples, grains, and have them research the nutritional benefits and come up with a dish that showcases the ingredient in a unique and delicious way. अलग अलग जब न्यूट्रिएंट्स की बात होगी, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स की बात हो रही है, राइट तो आप जब किसी भी तरीके से कोई भी इंग्रेडिएंट या फूड आइटम बच्चों के साथ बात कर रहे हैं कि आप इससे एक रेसिपी बनाएंगे, एंड दे कैन प्रिपेयर एन आर्ट इंटीग्रेटेड रेसिपी बुक ऑल्सो, राइट. पोस्टर बना सकते हैं, पीपीटी बना सकते हैं, अपनी बुक बना सकते हैं. एनकरेज एंड हेल्प देम टू पब्लिश देयर बुक्स ऑल्सो. नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट फूड मैपिंग, now what is food mapping? Have your students create a map of the world and identify different regions where different types of foods they are produced. Encourage them to research the climate कैसा है, geographical location कैसी है हर रीजन की, वहीं पर ही क्यों ये फूड ग्रो होता है. आप अपने सोशल साइंस टीचर्स के साथ इंटीग्रेट करके, उसके साथ कोलैबोरेट करके आप वो भी एक्टिविटी आप कंडक्ट कर सकते हैं. आप पैडलेट पर ये टूल यूज कर सकते हैं. मैंने पैडलेट का लिंक भी आपके साथ यहाँ पर शेयर किया हुआ है. यू कैन यूज दैट पैडलेट. पैडलेट की वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, दैट विल टेल यू हाउ टू यूज दिस पैडलेट सॉफ्टवेयर ऑल्सो. तो मूविंग फर्दर, माय डियर एजुकेटर्स, आई एम जस्ट गोना शो यू, ये है हमारा पैडलेट का लिंक. ठीक है, इसमें अलग अलग तरीके के पैडलेट्स अवेलेबल हैं. आप इसमें सोशल और साइंस और उसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं. आप मैप एक्टिविटी करा सकते हैं कि कौन सा फूड कहाँ पर ग्रो होता है, उनको लेबल करें, उनको पिंग करें. ठीक है, गूगल मैप्स पर भी कर सकते हैं. टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी से हम बच्चों को दूर थोड़ा ना रखेंगे. लेट देम यूज दिस टेक्नोलॉजी. एंड माय डियर एजुकेटर, फूड जर्नलिंग कैन बी डन. जर्नल्स में जैसे बच्चे लिखते हैं लैंग्वेजेस में, तो आप लैंग्वेज टीचर के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं. गो हैड विद अ फूड जर्नल, दैट इज सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी. हैव योर स्टूडेंट्स कीप अ फूड जर्नल फॉर अ वीक. एक हफ्ते का जर्नल लिखेंगे, वेयर दे रिकॉर्ड द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ द फूड, कि क्या वो डेली कंज्यूम कर रहे हैं. एनकरेज देम टू डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड दे ईट एंड हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड. क्या खाते हैं, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है. फार्म टू टेबल वाली बात वो आप डिस्कस कर सकते हैं. एंड यू कैन प्रोवाइड विद देम सम राइटिंग प्रॉम्प्ट्स आल्सो. जर्नल्स देखिए, मैंने भी बहुत सारे जैसे जर्नल्स हैं ऑनलाइन भी हम परचेज करते हैं, उसमें कई तो ब्लैंक्स होते हैं, मतलब अच्छी तरीके की डायरी डेकोरेटिव होती है, बच्चे उसमें लिखते हैं. एंड सम ऑफ द जर्नल्स स्पेशली रिलेटेड टू लाइफ स्किल्स, स्पेशली रिलेटेड टू जब हमें स्ट्रेस हो रहा है, कुछ है, बीइंग ग्रेटफुल, हैविंग एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, तो वो दे कम अप विद सर्टेन प्रॉम्प्ट्स. ओके, तो आप उनको कुछ प्रॉम्प्ट्स भी से दे सकते हैं, छोटे बच्चे हैं, सो दैट दे कैन इलेबोरेट ऑन दैट, दे कैन राइट अबाउट इट. सो द सेम कैन बी डन. चलिए, और इसमें हम कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं, लेट्स सी. नेक्स्ट इज फूड हिस्ट्री प्रोजेक्ट. Can we go ahead with the food history project? Have your student research the history of a specific type of food such as chocolates, tomatoes. Ask them to present their findings to the class and discuss how the food was evolved over time. And the same can also be related to the paired state. Under Ek Bharat Shresth Bharat हमारे पास एक नई लिस्ट आई है पेयर्ड स्टेट्स की. आप उस पेयर्ड लिस्ट के अकॉर्डिंगली आपको एक्टिविटीज भी करानी है, तो फूड को लेकर बहुत वंडरफुल आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रोजेक्ट हो सकता है. यू कैन सर्टनली गो हैड विद दैट, राइट. एक पर्टिकुलर स्टेट में ये फूड ग्रो होता है, उसकी हिस्ट्री, कहाँ से ग्रो हुआ, कैसे हुआ, रीजन कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, सॉइल कैसी है, तो उसका रिसर्च करके दे कैन कम अप विद दैट. दे कैन कंपेयर द सेम विद देयर स्टेट कि हमारी स्टेट में ये क्यों ग्रो नहीं होता. हाउ their state's condition, maybe of the state of the climate or maybe soil, क्या उसमें different I है, didn't तो catch that that. will be a Could you try again? project, right, for them. So my dear educators, you can go ahead with the food waste challenge also.
हैव योर स्टूडेंट्स इन्वेस्टिगेट द अमाउंट ऑफ द फूड वेस्ट प्रोड्यूस इन द स्कूल में कितना फूड वेस्ट हो रहा है जो लेके आ रहे हैं बच्चे, खाते नहीं है, छोड़ देते हैं, मे बी दे थ्रो इन द बिन, घर में, कम्युनिटी में. Ask them to come up with the ways to reduce waste and create a plan to implement their ideas. Let them do a parent collaborative task जहां पर वो न्यू रेसिपीज क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम द लेफ्ट ओवर्स. ये फूड वेस्ट हो रहा है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं इन अ न्यू फॉर्म. बार बार एक ही चीज एक ही फॉर्म में तो नहीं कंज्यूम कर सकते, तो दे विल कम अप विद इनोवेटिव आइडिया. चलिए, तो ये तो हुआ लेफ्ट ओवर रेसिपी मेकिंग, लेफ्ट ओवर फूड का जो कंज्यूम करने के लिए वो चैलेंज है. एंड माय डियर एजुकेटर्स, और इसमें क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं? यू कैन गो अहेड विद फूड लैब एक्सपेरिमेंट. Conduct a food lab experiment where your students they test the different sources of the food or nutritional content, उसका taste, texture के accordingly, and have them compare the results and discuss how foods are produced. ये आप अपनी कंपोजिट लैब में, आपकी जो स्कूल की लैब है, यूजली 8th तक के बच्चे दे विजिट द कंपोजिट लैब, या अगर आपको केमिस्ट्री लैब में जाकर करवाना है बच्चों को अंडर द गाइडेंस ऑफ द केमिस्ट्री टीचर, यू कैन गो हेड विद दैट. नो, फूड में उसके कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करते हैं, स्टार्च टेस्ट करते हैं, तो यू कैन कंडक्ट दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी ऑल्सो. ये एक्सपेरिमेंट्स उनकी बुक में भी दिए होते हैं, तो आप ये एक्टिविटी करवा सकते हैं. एंड फूड फोटोग्राफी प्रोजेक्ट, यूजली हमारे पास वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी होता है, अदरवाइज ऑल्सो यू कैन गो हेड विद इट. मैंने यहाँ पे मेंशन किया वर्ल्ड फोटोग्राफी डे ऑन August 19, तो अब एक्टिविटी करानी है ये भी करा सकते हैं. यू कैन हैव योर स्टूडेंट्स टेक पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स एंड क्रिएट अ फोटोग्राफी प्रोजेक्ट ऑल्सो. Encourage them to discuss the different sources of the food and how they are prepared, right? So food photography challenge आप कर सकते हैं, ये activity can be done. That is another wonderful activity for arts integration. अपना बनाए हुए खाने की पिक्चर क्लिक करें, राइट, कैसे रिस्पॉन्सिव रहे आप उसकी क्लिक करें. डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मेन्यू की पिक्चर्स जो है, एक मेन्यू कार्ड बना लें अपना विद बाय क्लिकिंग देयर ओन पिक्चर्स की ये मेरा अपना मेन्यू कार्ड है, तो दैट विल बी अ वंडरफुल एक्टिविटी. ग्लोबल फूड समिट, हैव अ ग्लोबल फूड समिट where students research and present on different types of food produced in different countries. अलग अलग कंट्रीज का खाना है, राइट, इटालियन, चाइनीज और मे बी इन अदर डिफरेंट कंट्रीज, वहां का आप अपना मेन्यू, कॉन्टिनेंटल फूड जो है वो उसका एक मेन्यू क्रिएट करें. टॉक अबाउट देम, एनकरेज देम टू डिस्कस द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन अराउंड द वर्ल्ड. एसडीजी से रिलेट करें, सस्टेनेबिलिटी के लिए हमें कौन कौन से चैलेंज आ रहे हैं, फूड कितना प्रोड्यूस होता है, कितना कंज्यूम होता है, राइट, किस किस को नहीं मिल पाता है, जीरो हंगर को भी आप इसमें रिलेट कर सकते हैं, तो यू कैन टॉक अबाउट दैट. नेक्स्ट इज culinary क्लब एक्टिविटीज कैन बी प्लान्ड, राइट. अगर आपके स्कूल में culinary क्लब है, एज आई हैव गॉट माय डिलीशियस डेलिकेसीज क्लब, आपके क्लास में culinary क्लब है, होम साइंस क्लब हो सकता है, शेयर योर मील, माय प्लेट टू योर प्लेट, जॉय ऑफ गिविंग, दीज काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज कैन बी प्लान्ड फॉर शेयरिंग food on achieving zero hunger or maybe other relevant SDGs that can be planned. चलिए, तो एक छोटी सी कविता है, पोम है, उसको पढ़ लेते हैं, मे बी विल गेट सम आइडियाज. किस तरीके से बच्चों को बोलिए दे कैन कम अप विद देयर ओन पोम्स आल्सो, उसमें लिखेंगे अपनी कविताएं और आपके साथ में शेयर करेंगे, ठीक है. सो यू कैन हैव सच काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज. ओके, सो हियर यू गो. From the fields of wheat to the orchard of fruit, sources of food abound, never to refute. Never to refute, from the depths of the sea to the heights of the sky, sources of food sustain us, never to deny. The farmers harvest a bounty to behold, crops of every kind, a story to be told. Story session करा सकते हैं farmers farm to the table के लिए. From the wheat of the plains to the corns of the south, sources of food nourish us, never to go without. कौन सा food कहाँ कौन सी क्रॉप प्रोड्यूस होती है उसके बारे में डिस्कस करना एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रोजेक्ट के अंतर्गत. अ फिशरमैन्स कैच अ ट्रेजर ऑफ द सी, फ्रॉम द सैलमन ऑफ द नॉर्थ टू द ट्यूना ऑफ द फ्री. वी टॉकिंग अबाउट ऐसे प्लेसेस जहाँ पर जिनका मेन जो फूड है वो फिश है, क्यों ज्यादा फिश खाते हैं, फिश से क्या मिलता है आपको, तो आप न्यूट्रिटिव वैल्यू भी उसकी डिस्कस कर सकते हैं. सोर्सेस ऑफ फूड सस्टेन अस, अ गिफ्ट फ्रॉम द डीप, अ फीस्ट ऑफ फ्लेवर्स, अ डिलाइट टू रीप. अब आप देखिए कि ये सिर्फ कविता का मतलब सिर्फ कविता ही नहीं है, अब इसमें कितनी एक्टिविटीज छुपी हुई हैं आपको ये देखना है. देख, सोर्सेज ऑफ फूड कौन कौन से हैं जो हमें सस्टेन करने में हेल्प कर सकते हैं, हमारी जो बेसिक इंपॉर्टेंट है, बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है. एंड देन अ गिफ्ट फ्रॉम द डीप, ये हमारे लिए गिफ्ट है फूड, राइट.
सर खाना खाते हैं सबसे पहले हम शुक्रिया करते हैं भगवान का, तो प्रेयर्स की भी करवा सकते हैं। क्यों क्यों शुक्रिया करते हैं भगवान का? हाथ जोड़ के थैंक यू करते हैं, राइट? थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट। सबसे पहले हम, जैसे लंच टाइम प्रेयर्स होती हैं, यू कैन गो हैड विद दैट ऑल्सो। फीस्ट ऑफ फ्लेवर्स, अ डिलाइट टू रीप। फ्लेवर्स है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट। आप रीप की बात कर रहे हैं, पक जाती है क्रॉप, फिर उसका द क्रॉप इज बीइंग, उसके जो कटिंग होती है, कटाई होती है, छटाई होती है, सब कुछ होता है, तो बहुत बार कई बार फसल बर्बाद भी हो जाती है बिकॉज ऑफ अनवांटेड, राइट, रेन्स ऑल्सो। तो अब जैसे रिसेंटली बहुत रेन्स आई हैं, कितना उसमें नुकसान होता है। ओवरऑल यू कैन टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। मतलब बियॉन्ड तो आप ले जा सकते हैं, मैंने आपको बोला बस अपने टॉपिक से बहुत ज्यादा हटके, बहुत दूर नहीं चले जाना, उसके आसपास बट जरूर आप बात करिए, तभी तो रियल लाइफ इंटीग्रेशन होगा। किताबों से हटना है आपको, बियॉन्ड द बुक्स थोड़ा सा तो जाना पड़ेगा आपको। So this is how, my dear educators, make sure you conduct such activities, discuss with your students, but you have to stay tuned to mentoring the mentors if you want to know more about such activities. आगे और भी है हमारे पास। The ranchers heard a marvel of land from the cattle of west to the sheep of grand, right? So ये भी हम बात करें कि शीप्स की बात हो रही है, कैटल की बात हो रही है, ग्रास की बात हो रही है, जो फूड की बात, उनका फूड क्या है, हमारा फूड क्या है, उनका फूड क्या है, वो क्या खाते हैं। एंड देन sources of food feed us a marvel to share, a protein packed meal beyond compare। छोटे बच्चे हैं, प्रोटीन्स उनके लिए बहुत जरूरी है। क्यों प्रोटीन जरूरी है, क्यों प्रोटीन्स खाने चाहिए? दे आर ग्रोइंग, यू कैन टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। प्रोटीन गिविंग फूड कौन कौन से हैं, उनको अपने मेन्यू चार्ट उस तरीके से वो बना सकते हैं। सो लेट्स सेलिब्रेट द सोर्सेज ऑफ अवर फूड, अ डाइवर्स बाउंटी, अ रीजन टू इंक्लूड from the earth and the sea and the sky up above, sources of food forever to love. And thank you all of you for showing that love and support to Mentoring the Mentors too. Stay tuned to Mentoring the Mentors. Like, subscribe, share, and don't forget to share your valuable comments in the comment section below. Thank you all of you. Wishing you a very nice, very happy, wonderful day ahead from Meenakshi Narula.